Hello all, welcome to my channel, it's Life Science. So this will be the starting of the new chapter, that is life process. As you can see, that is chapter number 6 in the textbook. So as you all know that our life survives with different process that happens in our body, right? So this chapter is discussing the same topic but in the details, right? You have studied various processes in your previous classes, but here you will study with diagram and also in a detail how this process happens, right? So here, as you can see in the starting of the chapter, when diagram is given, right, the diagram is of a heart, right? And if you know that a heart is responsible for circulation of blood, right? So how this blood circulate, and in our previous class we have studied the heart is 4-chambered heart, right? So these are the 4 chambers. This is the first chamber, this is second one, this is third, and this is fourth, right? So this way the heart is 4 chambers. So how the blood is circulated, we'll study in this chapter. Yes, so the question comes in a mind that which all are the life process that helps to survive a living organism. See, we will do the introduction bit quickly and we will focus on the main topics, right? So you see the breathing process, you know the breathing process, the process in which you inhale or exhale, that is known as a breathing process, right? Then when you are respiring, so it is a part of a breathing, right? Then digestion, it is a part of a life process, right? Then excretion, a part of a life process. Circulation of blood, a part of a life process. So these all are the life process, right? That is essential for living beings to survive, right? As we all know that we cannot make food like plants, because plants are autotrophs and we are heterotrophs. So we are mostly dependent on all the life process, right? Directly or indirectly. Okay, now we will directly move that what is the meaning of life process. Now you know that whenever we are alive or whenever we are sleeping, the question comes that our life process will be working in the background or it will be just stop. So the answer is the life process is parallelly and continuously working for us to make us survive, okay, in a life. So लाइफ प्रोसेस बैकग्राउंड में चलती ही रहती है, वो कभी स्टॉप होने वाली नहीं है. अगर मैं यहाँ पे अभी बैठा हूँ तो मेरी ब्रीथिंग प्रोसेस स्टार्ट होती है, मेरे ब्रेन में थिंकिंग प्रोसेस है वो भी चालू होती है. समझ में आ रहा है? तो सब प्रोसेस है वो कम्प्लीटली चालू ही होती है. वेन एवर यू आर स्लीपिंग, सेम वे योर डाइजेशन प्रोसेस इज गोइंग ऑन, योर रेस्पिरेशन प्रोसेस इज गोइंग ऑन. आप ऐसा सोचो कि अगर वो प्रोसेस नहीं होती तो क्या होता. अगर रेस्पिरेशन प्रोसेस नहीं होती तो एक लिविंग ऑर्गेनिज्म है वो सर्वाइव ही नहीं करता. समझ में आ रहा है? सो वेन एवर यू आर अलाइव और वेन एवर मीन्स यू आर इन अलाइव स्टेट बट यू आर इन whichever mode, means you are in sitting mode, you are in sleeping mode, the life process is continuously working on. Okay, so this is mainly your life process. Now we'll move to the next page of your textbook. So for the maintenance process, right, see, for the maintenance process, to prevent the damage and the breakdown of our cell, energy is needed obviously. क्या चाहिए हमारे बॉडी को? एनर्जी चाहिए. तो ये एनर्जी है वो कहाँ से आती है? अगर आपने पढ़ा था 9th स्टैंडर्ड में दैट एनर्जी, राइट, द एनर्जी कम्स फ्रॉम अ पर्टिकुलर सेल ऑर्गेनल दैट इज प्रेजेंट इन योर साइटोप्लाज्म, एंड द नेम ऑफ दैट सेल ऑर्गेनल वाज साइटोप्लाज्म, राइट? सॉरी, द नेम ऑफ दैट सेल ऑर्गेनल वाज माइटोकॉन्ड्रिया, एंड माइटोकॉन्ड्रिया इज ऑल्सो नोन एज पावर हाउस ऑफ द सेल, राइट? नाउ you know that this energy accumulation actually has one major source. ये एनर्जी का मेजर सोर्स क्या है? मतलब कि ये एनर्जी आने वाली कहाँ से है? तो ये एनर्जी आएगी हमारे खाने से, राइट? सो देयर मस्ट बी अ प्रोसेस टू ट्रांसफर अ सोर्स ऑफ एनर्जी फ्रॉम आउटसाइड द बॉडी विच वी कॉल फूड टू इनसाइड विच वी कॉल न्यूट्रिशन. तो फूड में से न्यूट्रिशन यूटिलाइज करके एनर्जी निकालने का काम बॉडी का होता है, राइट? और उसके लिए प्रोसेस होती है. कौन सी प्रोसेस? लाइफ प्रोसेस होगी, राइट? तो हमने अब तक क्या पढ़ा कि भाई हम
सोते हैं, जागते हैं, तो हमारी लाइफ प्रोसेस है वो कंटिन्यूसली चालू रहती है, मेंटेनेंस प्रोसेस है वो कंटिन्यूसली चालू रहती है, राइट। नए सेल बनाने की प्रोसेस, कुछ भी चीज़ है उसको ब्रेक डाउन करने की प्रोसेस, तो ये सब चीज़ें करने के लिए कुछ एनर्जी तो चाहिए। तो वो एनर्जी है वो हमारे बॉडी में कहाँ से मिलेगी? फूड से, खाना खाने से मिलेगी। फूड के अंदर क्या होता है? न्यूट्रिशन होता है। तो ये न्यूट्रिशन में एक्चुअली आता क्या क्या है? तो न्यूट्रिशन में आएगा कार्बोहाइड्रेट्स, कार्बोहाइड्रेट्स, right? Same way, proteins, right? Fat, vitamins, this all comes in a nutrition, right? So we need nutrition to survive, right? That's final thing, right? Now we are moving further. See, if body size of the organism is to grow, additional raw material will be needed from outside. Now think, whenever you are a child and now you are a grown ups, right? So there is a vast difference, the food you take day to day life, or in the time period where your age is shifted, right? आप जब छोटे थे तब थोड़ा सा खाना खाते थे, अभी आप बहुत ज़्यादा खाना खाते हो। क्यों? क्योंकि आपकी बॉडी साइज है वो बढ़ गई है, ऑब्वियसली, राइट। दैट्स वाई सिंस लाइफ ऑन द अर्थ डिपेंड्स ऑन द कार्बन बेस्ड मॉलिक्यूल, मोस्ट ऑफ दिस फूड सोर्सेज आर ऑल्सो कार्बन बेस्ड। मीन्स जो भी हम खाना खाने वाले हैं उसमें मेन कंटेंट क्या होने वाला है? हमारा कार्बन। कार्बन का केमिकल फॉर्मूला होता है सी, बहुत ही सिंपल चीज़ है, ठीक है। डिपेंडिंग ऑन द कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ द कार्बन प्रोसेस और सोर्सेज, different organism can then use different kind of nutritional processes. Okay, the outside source can be varied. Okay, the source of energy need to be break down or built up and finally converted into a uniform source. For this a series of chemical reaction take place. अभी ये break down करने के लिए, जैसे ही हमने पहले पैराग्राफ में भी पढ़ा था कि हमारे बॉडी प्रोसेस में मेंटेनेंस प्रोसेस होती है। मेंटेनेंस प्रोसेस मतलब क्या? कोई नई चीज़ बनानी या कोई चीज़ का ब्रेक डाउन करना। पर ये ओके, सो नाउ टू ब्रेक डाउन द फूड इज़ नेसेसरी फॉर एनर्जी टू गेन। वाई ब्रेक डाउन इज नीडेड? बिकॉज इन आवर बॉडी each and every food is extracted in a molecule form, right? That's why breakdown is necessary for body, right, to convert it in a form of energy, right? That's why it is necessary. See, the source of energy therefore need to be break down and must be finally converted to a uniform source of energy that can be used for molecular movement, need for maintaining living structure as well as kind of molecule that body needs to grow. तो ब्रेक डाउन इसलिए ज़रूरी है क्योंकि कोई भी बड़ी चीज़ है वो मॉलिक्यूल में कन्वर्ट हो जाए और वो मॉलिक्यूल है वो हमारे बॉडी के मेंटेनेंस में काम आए, या फिर हमारा बॉडी के अंदर कोई नए सेल्स को ग्रो करने हैं तो उसके लिए भी काम आए, ठीक है। सो फॉर दिस सीरीज ऑफ केमिकल रिएक्शन इज़ नेसेसरी। तो वो सीरीज ऑफ केमिकल रिएक्शन कौन कौन से हैं जो आपने पढ़े थे चैप्टर नंबर 1 में? ऑक्सीडाइजिंग और रिड्यूसिंग रिएक्शन, राइट। ऑक्सीडाइजिंग रिएक्शन में मतलब क्या? ऑक्सीजन को ऐड होना, इसको ऑक्सीडाइजिंग रिएक्शन बोलते हैं, मतलब कि ऑक्सीडेशन, सिंपल। और जब हाइड्रोजन ऐड होता है तो उसको हम बोलते हैं रिडक्शन। ये हमने पढ़ा था चैप्टर नंबर 1 में। तो यही सब ऑक्सीडेशन और रिडक्शन रिएक्शन के कारण हमारे बॉडी के अंदर के केमिकल रिएक्शन है वो भी कंटिन्यू होते हैं, ठीक है ना। तो बहुत ही सरप्राइजिंग थिंग है कि ऑक्सीडेशन और रिडक्शन के कारण भी हमारे बॉडी के रिएक्शंस होते हैं। अभी तक तो हमें ऐसा लग रहा था कि ऑक्सीडेशन रिएक्शन है वो तो सिर्फ मेटल में होने वाला है, पर ऐसा नहीं है। वो तो एक्चुअली हमारे फूड को ब्रेक डाउन करने में भी यूज़ होता है। मैं आपको एक ऐसा केमिकल रिएक्शन अभी यहाँ पे बताऊँगा जो हमारे रेस्पिरेशन प्रोसेस के लिए भी बहुत ही ज़रूरी है। बधी मेहनत पानी में गई बधाई। ओके, तो ब्रेक डाउन तो है वो नेसेसरी है। मैंने आपको बोला कि मैं आपको एक केमिकल रिएक्शन देने वाला हूँ, तो वो केमिकल रिएक्शन क्या है आप देखते ही समझ जाओगे। ये रेस्पिरेशन रिएक्शन है जो मैंने चैप्टर 1 में कराया था। C6H12O6 when combines with okay, now see, this is a glucose molecule, right? This glucose molecule conversion happens in our saliva. अभी आप इतना सोचो कि ये ग्लूकोज है
वो हमें सलाइवा में कन्वर्जन के बाद मिलने वाला है, राइट। ये ग्लूकोज है वो एक एटम की राह देख रहा है जिसका नाम है बहुत ही वेल नोन ऑक्सीजन। अगर ये ग्लूकोज ऑक्सीजन के साथ मिक्स हो गया तो क्या होने वाला है, तो वो हमें देने वाला है कार्बन डाइऑक्साइड 6CO2 प्लस 6H2O प्लस ATP। ATP क्यों लिखा है, क्योंकि जो भी एनर्जी है वो स्टोर कहाँ पे होती है, एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट में, जो कहाँ पे है, माइटोकॉन्ड्रिया में है। और माइटोकॉन्ड्रिया क्या है, कोई भी सेल ले लो आप, कोई भी बॉडी सेल, उसका जो साइटोप्लाज्म होता है उसके अंदर ये माइटोकॉन्ड्रिया होता है। और माइटोकॉन्ड्रिया सभी सेल ऑर्गेनल्स को अपनी एनर्जी है जो उसको चाहिए फंक्शन करने के लिए या मेंटेन करने के लिए, एनर्जी प्रोविज़न का काम करता है ये माइटोकॉन्ड्रिया। तो अभी आप इस ये पढ़िए कि क्या डेफिनेशन आपको एक्चुअली दी है टेक्स्ट बुक में। द प्रोसेस ऑफ एक्वायरिंग ऑक्सीजन फ्रॉम आउटसाइड द बॉडी, तो ऑक्सीजन हमने आउटसाइड द बॉडी से ही एक्वायर किया। ये हमने कहाँ से एक्वायर किया है, एक्चुअली ये हमने एक्वायर किया है एटमॉस्फेयर से। कहाँ से किया है, एटमॉस्फेयर से, तो आउटसाइड द बॉडी ही तो हुआ, राइट। सो प्रोसेस ऑफ एक्वायरिंग आउटसाइड oxygen from outside the body and to use it for the breakdown of food sources for cellular need is what we call respiration। तो ये बहुत ही नई सी डेफिनेशन है, यहाँ से यहाँ तक आप भी अपने टेक्स्ट बुक में अंडरलाइन कर सकते हो, राइट। तो हम ऑक्सीजन जो हम बाहर से एक्वायर करके, एक बड़ा सा कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल था जो कि ग्लूकोज, उसको हमने ब्रेक डाउन किया। ब्रेक डाउन करके उससे हमें तीन चीज़ें मिली, एक तो हमें एनर्जी मिली, दूसरा हमें पानी मिला जो हम यूज़ कर सकते हैं, तीसरा हमें मिला कार्बन डाइऑक्साइड गैस जो हमारे बॉडी से बाहर निकल जाएगा। आई होप यू आर क्लियर विद दिस टॉपिक, राइट। सो व्हाट वी हैव अंडरस्टूड, फॉर अ बॉडी ब्रेक डाउन ऑफ मॉलिक्यूल is important to gain energy. How breakdown happens, I have mentioned the chemical reaction over here, right? Now let's move that how this process happens in a single celled or unicellular organism। देखो यूनिसेल्यूलर ऑर्गेनिज्म में कोई स्पेसिफिक ऑर्गेन या पार्ट होता नहीं है, कोई भी वेस्ट को रिमूव करने के लिए या फिर एनर्जी बनाने के लिए, ठीक है। सी, सो इट्स रिटन इन योर टेक्स्ट बुक, इन केस ऑफ सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म नो स्पेसिफिक ऑर्गेन फॉर टेकिंग इन फूड, मतलब इंजेक्शन प्रोसेस के लिए कोई भी ऑर्गेन्स होता नहीं है, फिर एक्सचेंज ऑफ गैस के लिए भी नहीं होता है, ठीक है। बिकॉज द एंटायर सरफेस ऑफ ऑर्गेनिज्म इज इन कॉन्टैक्ट विथ एनवायरनमेंट, पूरे के पूरा जो ऑर्गेनिज्म है वो एनवायरनमेंट के साथ कनेक्टेड होता है और उनके पास कोई एक स्पेशल ऑर्गेन्स ही नहीं होते हैं कि वो उससे कुछ फंक्शन कर पाए, ठीक है। जैसे हमारा बॉडी है वो कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर में आता है, हम मल्टी सेल्यूलर हैं, तो हमारे पास स्पेसिफिक ऑर्गेन है स्पेसिफिक फंक्शंस करने के लिए, तो वैसा सेम चीज़ उसमें नहीं होता है। किसमें नहीं होता है, यूनिसेल्यूलर ऑर्गेनिज्म। एग्जाम्पल क्या है, तो अमीबा है, फंगी है, वो सब उसके एग्जाम्पल है, ठीक है। तो मोस्टली ये गैस एक्सचेंज वाली बात है वो यूनिसेल्यूलर में डिफ्यूजन प्रोसेस से हो जाती है या फिर ऑस्मोसिस प्रोसेस से हो जाती है। डिफ्यूजन प्रोसेस क्या है, तो कोई भी एक चीज़ है वो एक हायर कॉन्सेंट्रेशन से लोअर कॉन्सेंट्रेशन में आने की ट्राई करेगी, राइट, तो उसे हम डिफ्यूजन प्रोसेस बोल सकते हैं, राइट। और अगर आपको डिफ्यूजन प्रोसेस क्या है वो डिटेल में समझना है तो मैंने लिंक मेंशन की है डिस्क्रिप्शन में, यू कैन सी द वीडियो ऑफ क्लास 9, ओके। बट व्हाट हैपन्स व्हेन द बॉडी ऑफ द ऑर्गेनिज्म इंक्रीजेज एंड द बॉडी डिजाइन बिकम्स कॉम्प्लेक्स। अब हमारा बॉडी तो कॉम्प्लेक्स है, ठीक है, तो क्या डिफ्यूजन और ऑस्मोसिस इनफ है सभी वेस्ट को बाहर निकालने के लिए या कोई भी चीज़ है उसको एक्सचेंज करने के लिए एनवायरनमेंट के साथ? नो। सी, thus simple diffusion will not meet the requirement of the cells। सिर्फ डिफ्यूजन है वो ही इम्पोर्टेंट या वो ही चलने वाला नहीं है, तो कोई एडिशनल ऑर्गेन चाहिए। कोई भी मल्टी सेल्यूलर ऑर्गेनिज्म है उसके लिए तो हमें एडिशनल ऑर्गेन चाहिए। वो एडिशनल ऑर्गेन है हमारे बॉडी के अंदर, हाँ भाई ज़रूर है, वो एडिशनल ऑर्गेन है वो हमारे मल्टी सेल्यूलर ऑर्गेनिज्म में प्रेजेंट है ही, राइट। इसीलिए तो लाइफ प्रोसेस पॉसिबल है हमारे बॉडी के अंदर। So we have seen previously how in multicellular organism various body parts are specialized in the functions they perform। We are familiar with the idea of the specialized tissues, okay। ये सब तो थोड़ी कहानी है, हम थोड़ा स्किप करते हुए आगे जाते हैं कि however this poses a problem since food and oxygen are now taken up at one place in the body of which while parts of the body needs them। मतलब कि
हमारा बॉडी के अंदर एक ही जगह पे अगर एनर्जी मिलेगी तो क्या होगा, ये तो चलने वाला नहीं है। तो उसका मतलब ये है कि एनर्जी का जो सप्लाई है या फिर एनर्जी है उसका प्रोडक्शन होके उसका ट्रांसपोर्टेशन होना भी बहुत ज़रूरी है। तो राइट, तो हमारे बॉडी के अंदर ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम भी है, और ये ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम के लिए मेन कैरियर दो चीज़ है। जैसे हम को एक जर्नी करनी होती है तो हमें एक व्हीकल चाहिए, तो हमारे बॉडी के अंदर भी एक व्हीकल है जो सब हमारे एनर्जी को ट्रांसफ़र करता है इन द फॉर्म ऑफ मॉलिक्यूल, राइट। हमारे बॉडी के अंदर ट्रांसपोर्ट सिस्टम में है ब्लड, ठीक है, दूसरा वाटर, ये सब जो चीज़ है वो ट्रांसपोर्ट करने वाला है एक जगह से दूसरी जगह पे, ठीक है। तो इसीलिए हमारे बॉडी के अंदर एक सिस्टम है जिसका नाम है ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम, ठीक है। When chemical reaction use the carbon source and oxygen for energy generation, they create byproduct. They are not useless for the cell but could be even harmful. These waste products are therefore needed to be removed from the body and discarded outside by the process called excretion. ठीक है, देखो जब भी हमारे बॉडी के अंदर एक रिएक्शन हुआ था, वो रिएक्शन में यहाँ पे फिर से लिखता हूँ C6H12O6, जब एक ऑक्सीजन के साथ मिला तो उसने बनाया क्या, 6 कार्बन डाइऑक्साइड, 6 वाटर मॉलिक्यूल्स प्लस ATP। तो हमें मालूम है इसमें से कौन कौन सी चीज़ हमें चाहिए, ये चीज़ हमें चाहिए, ये चीज़ भी हमें चाहिए, पर हमें ये तो बाहर निकालनी पड़ेगी बिकॉज इट इज़ द वेस्ट प्रोडक्ट फॉर अस। सो देयर अराइजेज अ सिचुएशन इन विच द वेस्ट मस्ट बी डिस्पोज्ड आउट ऑफ द बॉडी। सो इन दिस सिचुएशन अ प्रोसेस that is important that happens in our body is excretion process. I think you all are clear with all the basic process. See, in the first paragraph we have studied about ingestion, in which we need a nutrition to gain the energy for the body, right. In the further or in the second paragraph we have seen that in our body some process called respiration take place. How this respiration take place? So a complex molecule gets breakdown due to the oxygen that is coming from the atmosphere, and it gives the energy to the body due to breakdown, right. In the further paragraph we have seen that in unicellular organism there are no specific part for life process, so they exchange gas as well as water with two process, that is diffusion and osmosis, and the link for diffusion and osmosis process explanation is given in this video's description, you can check it out. Now in the further paragraph we have seen that in our body if the energy is produced only in one part, then what will happen, then it will create a problem. So a transportation system is there in our body that carries the food and oxygen from one place to another place. Okay, now let's move further. Now as we are seeing that in respiration reaction some byproducts are created. See, this is our products and these are our byproducts, right. See, in our product here is H2 and ATP, the byproduct is CO2, so CO2 needs to be removed. So how this CO2 is removed? With the help of excretion process. I think now you all are clear with this, right. So in our next video we will proceed with the further topic, that is how nutrition can be obtained, what are the types of nutrition, autotrophic nutrition, heterotrophic nutrition, that you are already aware and you have studied in the previous class, but we will repeat it again. Thank you all for watching this video. Hope you have liked and enjoyed this video. Thank you.